Hi everyone. A lot of students have been asking me about how to make notes for civil services examination. Recently, I gave them a good book list, I gave them a planner, and a lot of students had this demand in the comment section below. And it is actually a real problem. I've also been trying to find a solution that I can share with all the students. Today, I want to discuss with you a very nice, practical, useful way of making notes online for your civil services prep. Before I get on with explaining to you how do I make notes and how can you also as an aspirant make good notes that you can actually use in the examination, I want to share this thing that making notes offline is not a very good idea. If a topper in the past has made notes offline on paper and cleared it, doesn't mean that we also need to follow that inefficient method. If there is more effective, more efficient method out there, then why not follow it? And online note making is one such method. It is not very difficult, but if you actually want to be successful in creating notes online, then using those notes to actually help you in the examination, then the structure and organizing of those notes has to be impeccable. The good thing is that it's actually even easier than doing it offline on paper. So now you will see on the screen Notion that I have opened. You can replicate the same thing, follow the same approach if you're using Evernote or OneNote as well. It applies to every place that you use, every application that you use in order to make notes online. I will be sharing with you some very good techniques that will help you understand, okay, this is how notes could have been made online by me and I just did not know it. I was not able to apply my mind to it. So let's get on with it. Now you can see on the screen, मैंने sample के लिए history डाला है because I feel that I'm an expert. I can call myself trying and delivering more and more knowledge in economy. So I'm going to focus more on economy. But these are called pages. And the beautiful thing about Notion or even OneNote is you can create a page within a page within a page. You can create multiple layers. So this is like a page, which basically means a notebook for me. So economy is a big notebook for me, under which I'll have multiple notebooks again. Similarly, history is a notebook for me. If I want, I can create another notebook. Let's say I want to create a notebook called geography. So it's as simple as that. I've just created a new notebook called geography for me. Let's come to economy. This way you can create notebooks for all the 13 subjects that I have told you in my past videos. 13 के 13, all the 13 can have 13 different notebooks. अब हम economy पे आते हैं. Before actually starting with your studies, जब आप एटलीस्ट ऑनलाइन नोट मेकिंग की बात करते हैं, इट बिकम्स इंपॉर्टेंट कि आप पूरा स्ट्रक्चर एक बार बना के बैठे हैं. एंड दैट इज वेयर आई वांट टू हेल्प यू कि मैं एक स्ट्रक्चर बना के आपको दूं और उस स्ट्रक्चर को आप यूज करना शुरू करो. तो ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया है इकोनॉमी का, जिसमें देयर आर अ टोटल ऑफ 19 चैप्टर्स. मैंने कुछ चैप्टर्स को कंबाइन किया है जिससे कि बहुत कंफ्यूजन ना हो, अदरवाइज 30+ चैप्टर्स हो जाते हैं. तो मैंने 19 चैप्टर्स बनाए. नाउ दीज आर मेड कीपिंग इन माइंड व्हाट्स गिवन इन NCERT, what's given in Ramesh Singh, what's given in Nitin Singhania sir's book, what's actually asked in the examination. ये चारों पांचों कंपोनेंट सब मिला के ये 19 चैप्टर्स डिसाइड हुए. ये 19 चैप्टर्स की 19 अलग अलग नोटबुक्स हैं. एक तरीके से आप ये समझ लीजिए. नोशन में इसको पेज बोलते हैं, वन नोट में कुछ और बोलेंगे, एवर नोट में कुछ और बोलेंगे, डजंट मैटर. द आइडिया इज, अगर हम लेमैन टर्म्स में समझे तो ये 19 नोटबुक्स हैं मेरे पास. फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे सबसे पहले नेशनल इनकम अकाउंटिंग, जिसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरा पढ़ाया जाता है. जीडीपी, जीएनपी, पर्सनल इनकम, प्राइवेट इनकम, डिस्पोजेबल इनकम, सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं. तो ये मैंने एक नोटबुक बना दी जिसके अंदर मैं सारे नोट्स बनाऊंगा. जो भी आप पढ़ोगे, वेदर यू स्टडिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन, बुक से पढ़ रहे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर सिविल सर्विसेज एग्जाम कि आप सब कुछ एक जगह पे कंप्रेस्ड फॉर्म में रख रहे हो. वाई? बिकॉज यू वॉन्ट टू बी एबल टू रिवाइज इट वन डे बिफोर द एग्जाम ऑल्सो. तो किताब से तो रिवाइज नहीं कर सकते, तो बेटर है कि यहाँ पे इतना कंप्रेस्ड फॉर्म में हो कि आप रिवाइज कर सको. दूसरी चीज़, 3 चीज़ें आएंगी टोटल, इनफैक्ट 4 भी हो सकती हैं. दूसरी चीज़ बताता हूँ जो कि अभी मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगा और वो बहुत इंटरेस्टिंग है. जो भी आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने विजन आईएएस का डॉक्यूमेंट खोला है नवंबर का, और ये अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं देखूँ तो आई थिंक 160-170 पेजेस का है ये डॉक्यूमेंट. 120 पेजेस का डॉक्यूमेंट है, 120-130 पेजेस का. तो नंबर 1, अब मैं ये पूरा डॉक्यूमेंट फिर से नहीं पढ़ना चाहूँगा.
अगर पढ़ने की जरूरत भी पड़ती है तो द प्रॉब्लम दैट अराइजेज इज कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा लेट्स से अनएम्प्लॉयमेंट से या फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स से, तो मैं फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स के बेसिक्स और करंट अफेयर्स दोनों को कंबाइन कैसे करूं, उसके लिए मुझे दो अलग अलग सोर्सेज में जाना पड़ेगा अपने ब्रेन के अंदर। पहले मैं लेट्स से यहाँ पर आया, चैप्टर 6 खोला मैंने, वहाँ पे एक्सटर्नल सेक्टर दिया हुआ है, एक्सटर्नल सेक्टर में इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड ये सब चीज़ें आ जाएंगी, बैंकिंग वगैरह सब कुछ आ जाएगा। तो मैंने एक्सटर्नल सेक्टर यहाँ पे मुझे याद है कि मैंने कवर किया है, तो मैंने यहाँ से जाके सिलेबस में पढ़ लिया क्या क्या बेसिक्स हैं। फिर मुझे अपने ब्रेन में 12, अगर 12 महीने को मैं करंट अफेयर्स पढ़ रहा हूँ तो 12 मैगजीन्स निकाल के अपने ब्रेन में रिकॉल करने की कोशिश करनी पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पर इकोनॉमी सेक्शन है कि इकोनॉमी सेक्शन में फ्री ट्रेड अग्रीमेंट में क्या क्या मैंने कवर किया था 12 मैगजीन्स में से। नाउ दिस बिकम्स अ वेरी हेक्टिक टास्क। ऑनलाइन नोट मेकिंग उस टास्क को कवर अप कर सकती है या उस टास्क को मिनिमाइज कर सकती है, जिससे कि आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी और जो 7 मिनट 8 मिनट में एग्जाम में आंसर लिखने का प्रॉब्लम होता है, चैलेंज होता है, वो ओवरकम कर सकते हो। एक बार स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं भी आपको ये डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले हमने 19 चैप्टर्स बनाए। लेट्स से मैं चैप्टर नंबर 6 खोल रहा हूँ, जिसमें पोस्ट 1991, जिसका नाम है पोस्ट 1991 मैक्रो इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज। तो पूरे इकोनॉमी को हमने 4-5 पार्ट में डिवाइड किया, प्री 1991 ऑल्सो एंड पोस्ट ऑल्सो। मैक्रो इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज, एक्सटर्नल सेक्टर। सर्विसेज में बैंकिंग आ जाएगा, पूरा बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम। तो इनमें क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए 1991 के बाद, ये सारा यहाँ पे सिलेबस में मुझे डिस्कस करना है। लेट्स से डेवलपमेंट्स इन मैक्रो इकोनॉमी, किस तरह से ग्रोथ में चेंजेस आए, सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बढ़ा, मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन बढ़ा, एम्प्लॉयमेंट का जो नंबर्स हैं वो भी चेंज हुए, द नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड इन डिफरेंट सेक्टर्स, ये सब मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। एक्सटर्नल सेक्टर में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए, मतलब हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट, करंट अकाउंट डेफिसिट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इन सब में क्या डिफरेंसेस आए, क्या चेंजेस आए, ये सब मैं यहाँ डिस्कस करूँगा। अब ये सब तो मैंने डिस्कस कर लिया सिलेबस के अंदर, ये हम लोग नॉर्मली भी करते हैं, ऑफलाइन नोट्स भी बनाओगे तो भी यही करोगे। द ब्यूटिफुल थिंग दैट अराइजेज हियर इज इट गिव्स यू द पावर, और मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, मैंने एक सेक्शन बना दिया सिलेबस का और उसके नीचे एक सेक्शन बना दिया करंट अफेयर्स का। अब फायदा क्या है, मैंने नवंबर का डॉक्यूमेंट खोला, नवंबर के डॉक्यूमेंट में यहाँ पे पेज नंबर 40 पे डिस्कस्ड है इंपॉर्टेंस ऑफ लार्ज ट्रेड अग्रीमेंट्स। तो मैं पेज नंबर 40 पे गया और मैंने देखा यार लार्ज ट्रेड अग्रीमेंट्स कहाँ पे लाए करना चाहिए ट्रेड, और ये करंट की बात हो रही है। तो ट्रेड अग्रीमेंट्स एक्सटर्नल सेक्टर में आते हैं कि द सरकार, द गवर्नमेंट इज entering into agreements with other countries around the world in order to increase trade of India, है ना, जिससे कि हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर सकें, इंपोर्ट करने की ज़रूरत कम पड़े। ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है ट्रेड अग्रीमेंट्स करने का, या हम इजीली ट्रेड कर सकें एज कंपनीज एज वेल एज अ कंट्री। तो मैंने पूरा पढ़ा पहले कि यार एग्जैक्टली ये न्यूज़ बोल क्या रही है। न्यूज़ बोल रही है दैट नीति आयोग हैज सजेस्टेड that India should be a part of more regional trade agreements and more larger trade agreements, जिसमें फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स आ जाएंगे, RCEP आ जाएगा, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट्स, एंड CPTPP आ जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे ट्रेड अग्रीमेंट्स अलग अलग टाइप के होते हैं। तो नीति आयोग बोल रहा है कि यार और ट्रेड अग्रीमेंट्स करो, और ज़्यादा ऑलरेडी जो मल्टीलेटरल ट्रेड अग्रीमेंट्स हैं उनके पार्ट बनो, जिससे कि आपका ट्रेड करना आसान हो जाए एज अ नेशन। ये जिस्ट है पूरी न्यूज़ का। अब इसमें क्वेश्चन क्या क्या राइज होते हैं मैंने पढ़ लिया, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, सेकंड वाला है ये, ट्रेड अग्रीमेंट्स ऑफ इंडिया। नीति आयोग सजेस्टेड दैट इंडिया शुड बी अ पार्ट ऑफ लार्ज ट्रेड अग्रीमेंट्स। अब क्वेश्चन आता है कि यार क्यों बोला ऐसा, क्या फायदा होगा लार्ज ट्रेड अग्रीमेंट्स में जाने से, तो अब मुझे वो एक्सप्लोर करने हैं। नंबर 1, एक और क्वेश्चन आता है, इंडिया इज अ पार्ट ऑफ विच फॉरेन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स एंड RCEPs, किस किस का पार्ट है। तो लेट्स से हमने इंडिया एशियान फॉर एग्जाम्पल RCEP डाल दिया, है ना, इंडिया इंडोनेशिया फॉर एग्जांपल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डाल दिया, इंडिया श्रीलंका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डाल दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, आपको ऑलरेडी रियलाइज होगा कि यार सिलेबस में भी मैंने कुछ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स एक्सटर्नल सेक्टर में कवर किए थे, तो वहाँ पे जो भी कवर्ड है वो यहाँ पे फिर से कवर करने की जरूरत नहीं, यू कैन जस्ट मेंशन कवर्ड अबव इन दी सिलेबस। तो अब एक साथ हो गया, एक तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क खत्म हो गया। अब जब मैं रिवाइज करूंगा, रिवाइज करते हुए मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा सिलेबस और करंट अफेयर्स को सिंक करना, और जब एग्जाम में एक्चुअली क्वेश्चन आता है फ्री ट्रेड अग्रीमेंट का, तो मेरा माइंड एक ही जगह जाएगा, चैप्टर 6 उसमें एक्सटर्नल सेक्टर की बात हुई है, उसमें फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स की बात हुई है, मुझे याद है,
वहाँ पे सिलेबस में मैंने ये पढ़ा था फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के बारे में, एक्सटर्नल सेक्टर के बारे में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में, और करंट अफेयर्स में ये 5 न्यूज़ थी पूरे साल में विच वर टॉकिंग अबाउट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब ज़रूरी नहीं है कि आप सब कुछ हाथ से लिखो ही, लॉट ऑफ स्टफ कैन बी कॉपीड पेस्टेड ऑल्सो, क्योंकि ये भी ऑनलाइन है वो भी ऑनलाइन है, तो ये यहाँ पे टाइम बच जाता है, पेपर पे बार बार लिखना पड़ता है। यहाँ से आपने सब कुछ कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो आपका टाइम बच गया। अब ये क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्ड है कि नहीं है, या फिर यहाँ पर कुछ नया क्वेश्चन तो नहीं है हमारे सामने। अब यहाँ पे अबाउट RCEP लिखा हुआ है, तो अगर RCEP ऊपर सिलेबस में मैंने डिस्कस नहीं किया है, तो यहाँ पे एशियन RCEP मैंने यहाँ पे लिखी दिया, इंडिया एशियन RCEP, उसके बारे में मैं यहाँ डिस्कस कर दूंगा। So India ASEAN RCEP is a comprehensive free trade agreement between 10 ASEAN member states and ASEAN's 5 FTA partners. तो किस किस के बीच में है वो यहाँ पे लिखना जरूरी है। मैंने एक सब सेक्शन बनाया, between 10 ASEAN members and 5 ASEAN FTA members and India, ये हमारे बीच में RCEP साइन हो चुका है। इसके ऑब्जेक्टिव, ये इसका देखो डायग्राम है, इसको कॉपी पेस्ट करके मैं यहाँ पे डाल भी सकता हूँ। मैंने क्या किया, इसको इस तरह से कट किया, बिकॉज दीज आर माई पर्सनल नोट्स, आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट टू डू। मैंने यहाँ पे कट किया और यहाँ पे मैंने सीधा डाल दिया। इट्स सो सिंपल। अब कितना टाइम बचा है मेरा, आई डोंट हैव टू एक्चुअली मेक दिस ऑन पेपर, और जब मैं रिवाइज करूँगा तो मेरे लिए याद रखना आसान हो जाएगा। तो मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, यहाँ पे कट करके डाल दिया। अगेन दीज आर नॉट फॉर कमर्शियल पर्पसेज, दीज आर फॉर योर पर्सनल पर्पसेज ओनली, तो प्लीज उस तरह से डील कीजिएगा इनसे, ठीक है ना। RCEP negotiations began in 2013, it was signed in 2020, तो यहाँ पे मैंने एक फैक्ट लिख दिया, signed in 2020, ओके। उसके बाद मैं और जो भी ढूंढ सकता हूँ इसके बारे में ढूंढ के लिखना शुरू कर दूंगा। अब मुझे वापस से दोबारा आई डोंट हैव टू रीड दिस एंटायर थिंग, बिकॉज आई नो कि मैंने यहाँ पे नोट्स बनाए हैं अपने, और वो काफ़ी कंप्रेस्ड फॉर्म में, एग्जाम से पहले मैं वही पढ़ूंगा, रिविजन में भी मैं वही पढ़ूंगा। जहाँ पे वेर एवर यू फील दैट यू कांट अंडरस्टैंड एनीथिंग, तो आप वापस जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ट्रेड एग्रीमेंट्स इन इंडिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया नवंबर 2024 विजन मैगजीन, दैट्स इट। तो अब मुझे वापस भी ढूंढना पड़े, आई नो कि कौन से मंथ में मुझे जाना है, इट बिकम्स वेरी इजी फॉर मी टू एक्चुअली फाइंड इट, ठीक है। अब नीचे आए, नीचे लिखा है सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन लार्ज ट्रेड एग्रीमेंट्स, इफ इंडिया बिकम्स अ पार्ट ऑफ लार्ज ट्रेड एग्रीमेंट्स अकॉर्डिंग टू नीति आयोग, हमें क्या क्या फायदे होंगे, क्या क्या एडवांटेजेस होंगे। सबसे पहला, इंटीग्रेशन इनटू ग्लोबल वैल्यू चेन, ग्लोबल सप्लाई चेन, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए डाला था, इंटीग्रेट विद ग्लोबल सप्लाई चेन, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है ना, ओके। उसके बाद ये वाई में डाल दिया मैंने, इसको डालना चाहिए था ऊपर, तो मैं यहाँ से इसको रिमूव भी कर सकता हूँ, आई कैन एक्चुअली चेंज इट, मैंने ऊपर। सो इट्स सो सिंपल टू एक्चुअली कैरी आउट ऑल दिस एक्टिविटी। देखो मैंने कुछ भी एरर किया, मुझे इमीडिएटली मिल गया और मैंने वो एरर रिजॉल्व भी कर दिया, मैंने बेसिक्स में डाल दिया, ठीक है। अब उसके बाद इंटीग्रेट विद ग्लोबल सप्लाई चेन्स, ये एक रीज़न था। सेकेंड रीज़न, बेनिफिट दी MSME सेक्टर, क्योंकि MSME सेक्टर अब ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाएगा। MSME सेक्टर बेनिफिट्स, इसको मैं डिटेल में डालना चाहूँ तो कुछ डाल भी सकता हूँ, सब पॉइंट्स बनाना चाहूँ सब पॉइंट्स भी बनाए जा सकते हैं, ओके। दैट इज हाउ फर्स्ट लेवल ऑफ नोट मेकिंग कैन बी डन, स्पेशली करंट अफेयर्स। अब ये शुरू में लगेगा बहुत हेक्टिक टास्क, बहुत लंबा चौड़ा, और हो सकता है ऐसा लगे यार ये तो कवर करने में या इसको एक्चुअली नोट्स में डालने में बड़ा समय लग रहा है, बट कुछ टाइम के बाद आफ्टर वाइल यू विल स्टार्ट फीलिंग कि यार ये सब मैं ऑलरेडी बार बार कवर कर रहा हूँ, रेपिटेशन हो रहा है। नेक्स्ट मंथ भी जो डॉक्यूमेंट्स आएंगे उसमें शायद RCEP पे फिर से डिस्कशन होगा, तो आप जैसे यहाँ पे आए आपको देखा है RCEP पे तो ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, फिर से डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, फिर से डालने की जरूरत नहीं है मुझे, आई हैव सेव्ड अ लॉट ऑफ टाइम। That is how you actually end up saving a lot of time when you have something that belongs to one area, keep it there only. Rather than dividing it month-wise, we are now dividing it chapter-wise. Okay. अब vision document might not be the only one that you're reading. Let's say you're reading going through newspaper. जैसे कि मैंने newspaper का एक example यहाँ डाला हुआ है, रुपी hits all time low of 85.97, मतलब ये बोल रहा है कि रुपी US डॉलर के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा डेप्रिशिएट कर रहा है। ये भी हमारा एक्सटर्नल सेक्टर के अंदर आ गया क्योंकि एक्सचेंज रेट की बात हो रही है। तो मैंने करंट अफेयर्स में एक टॉपिक डाला एक्सचेंज रेट US डॉलर INR, और सेम मैंने यहाँ पे टाइम डाल दिया सो दैट आई नो कि यार ये
मैंने नवंबर की मैगजीन से उठाया है। फिर मैंने अपने आप थोड़ा बहुत लिखा और अब मैं कॉपी भी कर सकता हूँ। द इंडियन रुपी स्लिड टू एन ऑल टाइम लो ऑन फ्राइडे, तो मैं यहाँ से हटा सकता हूँ। द रुपी हैज बीन स्लाइडिंग कंसिस्टेंटली रेगुलरली ओके, क्लोजिंग एट 85.96 अगेंस्ट यूएस डॉलर, डाउन। अब कितना डाउन हुआ है वो रेलेवेंट नहीं है। रीजंस बिहाइंड द फॉल, ये मैंने फिगर आउट किया कि यार डाउन तो हो रहा है लेकिन ये क्यों डाउन हो रहा है। हो सकता है यहाँ पे मुझे कुछ रीजंस मिल जाए, हो सकता है कुछ रीजंस ना मिले। तो जो भी आपको रीजंस मिलेंगे वो आप डालना शुरू कर दोगे। लेट्स से ग्लोबल अनसर्टेनिटी, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी इज अ रीजन। इसका मतलब क्या है? अगर ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है, मतलब पीपल डोंट नो whether the economies are going to grow, especially the financial markets, or they are not going to grow. So they start going back to US because US dollar जो है वो काफ़ी सेफ एसेट माना जाता है, एंड अपॉन दैट US इज अ डेवलप्ड नेशन, तो वो सेफ एरिया माना जाता है, इसलिए इन्वेस्टर स्टार्ट गोइंग बैक देयर। व्हेन दे स्टार्ट गोइंग बैक देयर, automatically they start demanding more dollars. Demand for more dollars against INR, which results in depreciation of INR and appreciation of US डॉलर। तो जब डिमांड किसी भी चीज़ की बढ़ेगी तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो जब US डॉलर की डिमांड बढ़ रही है विज़ोवी INR, तो इंडियन रुपी को हम कन्वर्ट कर रहे हैं US डॉलर में, दैट ऑटोमेटिकली एप्रिशिएट्स US डॉलर एंड स्टार्ट्स डेप्रिशिएटिंग इंडियन रुपी। तो ये एक रीज़न हो गया। ऐसे बहुत सारे रीजन्स आपको मिलेंगे, वो यहाँ डालते हुए चले जाओ। नाउ इट बिकम सो ईजी फॉर अस टू रिवाइज डाउन द लाइन। अल्टीमेटली जब आपके एग्जाम, देखो यूपीएससी सिविल सर्विसेज में प्रॉब्लम पढ़ने की नहीं है, प्रॉब्लम है जो आपने पढ़ा है वो एग्जाम में रेप्लिकेट करने की। और वो एग्जाम में रेप्लिकेट तभी कर पाओगे जब आपने जो पढ़ा है उसको ऑर्गेनाइज अच्छे से किया है। उसको ऑर्गेनाइज ढंग से नहीं किया है तो वो एग्जाम में रेप्लिकेट होगा ही नहीं, और एग्जाम में अप्लाई नहीं कर पाओगे तो नंबर नहीं आएंगे। तो ये दो एस्पेक्ट्स, दो डिविजन्स हमने किए हर एक चैप्टर में, सिलेबस, करंट अफेयर्स। उसके बाद एक और डिवीजन किया जा सकता है जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत यूजफुल है। मैंने एक और डिवीजन किया जो कि है आंसर राइटिंग का। अब ये कुछ नया है, नॉर्मली ये नहीं हो रहा है, इसको मैं समझा देता हूँ। जैसे कि मैंने ये चैप्टर पढ़ा था जब सिलेबस में से, तो मुझे मेरे दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आए, या फिर एनसीईआरटी के पीछे कुछ क्वेश्चंस थे, या फिर रमेश सिंह, नितिन सिंघानिया सर की किताब पढ़ी, उनमें पीछे मुझे कुछ क्वेश्चंस मिले आंसर राइटिंग वाले। नहीं भी मिले, लेट्स से वर्स्ट केस सिनेरियो, मैंने करंट अफेयर्स पढ़ा, कुछ मुझे क्वेश्चंस मेरे दिमाग में है, बहुत बेसिक क्वेश्चंस रखने, कॉम्प्लिकेट नहीं करना। जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सटर्नल रेट के बारे में, हमने देखा रीजंस इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द मेन रीजंस बिहाइंड डेप्रिसिएशन ऑफ INR वर्सेस US डॉलर इन 2024? बस ये मैंने क्वेश्चन डाल दिया, दैट्स इट। अब मुझे करना क्या है? आई हैव टू ट्राई एंड आंसर इट विद इन 150 to 200 वर्ड्स। और मैं यहाँ पे पहले स्ट्रक्चर बनाऊंगा, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। मैंने ये बना दिया। अगर 10 नंबर का है तो कंक्लूजन स्किप भी कर सकते हो, नहीं है तो स्किप मत करना, फिर लिखना। इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन में अब मैं लिखूंगा, और मैं यहाँ से मेजर भी कर सकता हूँ कि भाई कितने वर्ड्स का मैंने ये लिखा है। ऐसे आपको हर एक चैप्टर में, हर एक करंट अफेयर्स से रिलेटेड आपको टोटल मिला के 5-10 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। लेट्स से 5 क्वेश्चन बने चैप्टर 6 में बिफोर योर एग्जामिनेशन। ऐसे ही व्हाट विल हैपन नाउ इज अप्रोक्सीमेटली 20 चैप्टर्स मान लेते हैं, 20 to 500 क्वेश्चंस आपके पास आंसर राइटिंग के हो गए। ये खाली मैं आंसर राइटिंग की बात कर रहा हूँ, अभी मैं उस पर आया ही नहीं हूँ, क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स पे उस पर मैं नहीं आया हूँ। तो 100 क्वेश्चंस आपके पास रेडी हैं, और चांसेस आर वेरी हाई कि यहाँ से 1-2 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में चिपक जाएंगे। वही मेरा ऑब्जेक्टिव है, वही मेरा टारगेट है कि यार मैं उतना एफर्ट लगा लूँ कि 1-2 क्वेश्चंस मेरे यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट आ जाएं, या जो मैंने यहाँ पे लिखा है वही पूछ लिया जाए। ऑटोमेटिकली मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मेरे आंसर की क्वालिटी भी बढ़ेगी। और एग्जाम से पहले जब रिवाइज करोगे तो सबसे पहले सिलेबस को रिवाइज किया चैप्टर वाइज, फिर उसके बाद देख लिया कि यार करंट अफेयर्स में क्या क्या मुझसे मैंने कवर किया है पिछले 1 साल में, वो पढ़ लिया उसी चैप्टर से रिलेटेड। इट बिकम सो ईजी नाउ। और साथ में आंसर राइटिंग में मैंने देख लिया अच्छा मैंने क्या क्या क्वेश्चंस बनाए थे और उनके आंसर्स क्या लिखे थे। बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए सब कुछ पढ़ना और उसके बाद रिवाइज करना, आपको बार बार किताबें उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये स्ट्रक्चर पहले यू हैव टू क्रिएट सच अ स्ट्रक्चर फर्स्ट हैंड बिफोर यू एक्चुअली स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। सोचोगे कि पहले मैं पूरा सब्जेक्ट पढ़ लेता हूँ उसके बाद ही बनाऊंगा, नहीं हो पाएगा। बेटर है
पहले 4-5 किताबें उठा के ऑनलाइन जैसी मैं वीडियो बना रहा हूँ वैसी देख के आप खुद का एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लो सब्जेक्ट वाइज। 13 चैप्टर्स मैंने बताए हैं, सारे 13 चैप्टर्स का आप क्रिएट कर लोगे ऐसे स्ट्रक्चर। उसके बाद पढ़ना शुरू करो डिटेल में, जिससे कि किताबों को बार बार ना उठाना पड़े। एक ही बार में उठा के आपने नोट्स बना लिए, नोट्स भी जल्दी बनेंगे और वो एग्जाम में भी ज़्यादा यूज़ होंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो बोलते हैं सर मुझे ना ऑनलाइन बना तो लेता हूँ बट जो भी मैं ऑनलाइन लिखता हूँ मुझे याद नहीं रहता। इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके बहुत आराम से आप लोग एक्सपोर्ट करके पीडीएफ में कन्वर्ट करके और पेपर पे फिर उसके बाद उससे पढ़ सकते हो। पेपर पे पढ़ोगे, उसके बाद थोड़ा बहुत स्क्रिबल करोगे, ऑटोमेटिकली आपका रिटेंशन बढ़ जाएगा, रिकॉल बढ़ जाएगा। ठीक है ना। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज सेशन। आई होप समझ आया होगा कि किस तरह से ऑनलाइन नोट्स बनाने हैं और किस तरह से उनको इफेक्टिव बनाना है अपने लिए। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं एक ऐसा सिस्टम जनरेट करूँ जिससे कि मैं ये सारा कंटेंट आपके साथ शेयर कर सकूँ और स्टूडेंट्स मैं करंट अफेयर्स भी रेगुलरली इसमें डाल सकूँ और स्टूडेंट्स उसको एक्चुअली यूज़ कर सके चैप्टर वाइज फॉर देयर प्रिपरेशन। ओके, this is all from my side for this session. I'll see you once again. All the best. Take care. Bye bye. Jai Hind.